माइक ऑन कर लीजिए मैम, आपका माइक ऑफ है। हाँ, एक सेकेंड में पढ़ा शुरू कर दूँगी। पता नहीं उसके पास मैसेज आया होगा, मेरी क्लास शुरू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। In our last lecture, we were discussing about the material costing, in which we discussed one of the method of valuing the closing stock, that was FIFO. Today we have to discuss the another method, LIFO, weighted average replacement. Now, when we prepare the stock ledger account on the basis of FIFO, we have to consume the goods which were purchased in earlier batches. तो जैसे जैसे हमने परचेजेस किए थे वैसे वैसे हम उनको यूज़ कर देते हैं कंजम्पशन के लिए उसी रेट पर। लीफो में जो हमारी लेटेस्ट परचेजेस होती हैं, लास्ट परचेजेस होती हैं, हम उनको कंजम्पशन में पहले लेकर आते हैं और पहले वाला जो लॉट होता है वो हमारे पास रखा रहता है। The question, I'll start with the question. Apart from this, what I'll do is, just because of the shortage of time, I'll share one of the Excel sheet, and will try to explain the question on the basis of LIFO as well as the weighted average method. The random question will be discussed. I'll just share the Excel sheet. I hope the Excel sheet is visible to you. Okay. Now you have the format is date, then you have purchases. में आपके पास 3 कॉलम्स होते हैं, फिर इशू वाले कॉलम में या कंजम्पशन या सेल्स जो भी आपको लिखना है आप वो लिख सकते हैं। देन अगेन यू हैव 3 कॉलम्स एंड देन यू हैव द बैलेंस, और इन सब में भी यू हैव क्वांटिटी, डेट, अमाउंट। Now, if I just assume that on 1st of January, I hope screen is properly visible to you so that you can, any one of you just confirm me on the Q&A section that screen is properly visible to you. Now, if I just start the random question on 1st of January, let's say you have the opening balance of 1000 units which were purchased at a rate of 50 rupees. So what will you do is, in the stores ledger entry, the first entry will be on 1st January, and you just have the opening balance, so it will be, let's say, 1000 units at a rate of 50. तो आपके पास 50,000 का स्टॉक रखा हुआ है ऑलरेडी 1st of January को। देन इन केस, ओके प्लीज जूम अप बिट। Okay, now let's say on 3rd of January, you make a purchases of 500 units at a rate of, let's say, 8. That means you make a purchases of 4000 रुपीज़ के स्टॉक आपने परचेज किए। अगर हम इसको लीफो से बना रहे हैं, इफ आई जस्ट मेंशन इट हेयर, in case you are preparing it on the basis of LIFO, then what will to be done is, every time you have any transaction of purchase or issue, you have to write the total balance, अलग अलग करके इकट्ठा लिखना है। तो टोटल में 45 मिनट्स, हाँ मैं चलूँगी साथ। हाँ हाँ ठीक है, ओके सॉरी।
3rd of January को you have made a purchases of 500 units at a rate of 8. So at the end of 3rd of January, what will be the balance? You have 1000 units at a rate of 50. ये 50,000 का आपके पास स्टॉक रखा हुआ है. 500 यूनिट्स मैंने और परचेज की 8 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये की. दिस वॉज द टोटल योर एंट्री फॉर द 3rd of January. मैंने इसको बॉक्स में करके रख दिया है आप लोगों के लिए, so that it would be easy for you to understand this. Now let's say on 7th of January, and make sure that every time you are doing any transaction, just put a line after that, so that it would be easy for you. Otherwise sometimes what happens is कि overlapping हो जाती है, and अगर आप बहुत जल्दी में आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो आपका सोल्यूशन गलत हो सकता है. Let's say on 7th of January you issued 700 यूनिट्स. आपने 700 यूनिट्स को कंज्यूम किया. क्योंकि हम लीफो से कर रहे हैं तो लीफो मीन्स कि जो लास्ट परचेजेस थे, लेटेस्ट परचेजेस थे, वो आपने कंज्यूम पहले किए हैं. लास्ट परचेजेस 7th जनवरी से पहले जो मेरा बैलेंस था वो मेरे पास कितना है? आई हैव 1000 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 50 and 500 units at a rate of 8. Now what's actually you're supposed to do, in case I'm using LIFO, last lot has to be consumed first. Last lot is only of 500 units at a rate of 8. And on 7th January I'm using 700 units. That means these 500 units will totally be used or exhausted, and remaining 200 units will be taken away from the lot of next batch, which is the previous batch of 1000 units at a rate of 50. So this 700 units will be bifurcated here, and in total you have to consume for 700. So out of this 700, 500 at a rate of 8 will be consumed. ये वाला लॉट हमारा पूरा यूज हो गया, और उसके बाद जो रिमेनिंग 700 यूनिट्स थे वो हमने अगले पिछले उससे पहले वाला जो लॉट था उसमें से जो हमारा 50 रुपये वाला था उसमें से हमने इसको यूज़ कर लिया है. ये आपने 1000 का आपने मटेरियल यूज़ कर लिया, 10,000 का मटेरियल आपने यूज़ कर लिया है. रिमेनिंग बैलेंस विल ऑन 7th January विल बी you have 800 units at a rate of 50. 40,000 का स्टॉक अभी आपके पास रखा हुआ है. Now this is the transaction which is to be done on 7th of January. 7th January के बाद let's say on 8th January you made a purchases of let's say 1000 units at a rate of 9 rupees per unit. 9 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से जो आपने परचेजेस किए, उसके बाद आपका जो बैलेंस बचेगा 800 यूनिट्स आपके पास 50 रुपये वाले बचे हुए थे, और 1000 यूनिट्स आपने परचेज किए 9 रुपये के हिसाब से, 9,000 रुपये की. अभी जो मैंने रैंडम फिगर ली है वो जो सबसे पहला वाला रेट है दैट इज़ ऑफ 50 रुपीज़, और उसके बाद मैंने 8-9 रुपये लिए. दिस मे बी द सिचुएशन कि आपका इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के टाइम पे आपने बहुत महंगा अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस पे लिए, इट कैन बी पॉसिबल. अब ना 8th जनवरी के बाद यू हैव द बैलेंस in totality of 800 units at a rate of 50 and 1000 units at a rate of 9. Now 11th of January you consumed 1200 units, और let's say अगर आपने 1200 की तो फिर वापस कैसे करेंगे? 1000 यूनिट्स का लास्ट लॉट था तो 1000 यूनिट्स ये 9 रुपये वाली हमारी कंज्यूम हो जाएंगी, और 800 यूनिट्स हमारी 50 रुपीज़ वाली में से 200 यूनिट्स मेरी कंज्यूम होकर 600 यूनिट्स बच जाएंगे. इफ़ आई जस्ट मेक इट आउट कि इसमें से आपने 700 यूनिट्स को कंज्यूम किया है, 700 यूनिट्स जो लास्ट बैच है वो आपका 1000 यूनिट्स का था 9 रुपीज़ वाला, इसमें से आपको यूज़ करना है. इसमें आपने जो किया ये आपने यूज़ करा 800 का, आपके पास लॉट बचा 50 रुपीज़ के हिसाब से, और यू हैव 300 एट अ रेट ऑफ 9. ये आपके पास लास्ट में बचा हुआ है. Now on let's say 13th January what happens is that आपने कोई स्टॉक वेरिफिकेशन किया या somehow you came to know that there is a normal loss of 10 units या of let's say 50 units, 50 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस है.
Now in case you have normal loss, you may have two situations when one is when you have the normal loss, and the another one is when you have the abnormal loss. In case you have normal loss, make sure that whenever you have a situation of normal loss, only the number of units are supposed to be changed. Until and unless you have abnormal loss, it is not to be valued. नॉर्मल लॉस अगर है तो हमें सिर्फ यूनिट्स की चेंजेस दिखाने हैं, उसकी वैल्यूएशन नहीं करनी है, अमाउंट नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ क्वांटिटी दिखाएंगे. अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो एबनॉर्मल लॉस के केस में हम क्वांटिटी भी दिखाएंगे और उसकी वैल्यूएशन करके अमाउंट भी शो करते हैं. इसकी रीज़न वजह क्या होती है? जो हमारे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस हैं, दोनों कैटेगरीज, नॉर्मल लॉस इज़ द एक्सपेक्टेड लॉस. हमें पता होता है, एक्सपेक्टेशंस होती है हमें पहले से कि इतना नुकसान हमें हो सकता है. एबनॉर्मल लॉस जो होता है दैट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड लॉस, जिसके लिए अगर हमें ये होता है कि कभी हमें अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस की वजह से नुकसान हो तो हम उसकी इंश्योरेंस करा के रखते हैं. तो एवरी टाइम व्हेन वी आर गेटिंग stock or raw material or products insured, that means we are insuring against the abnormal loss. तो अगर हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है और उस टाइम पे नुकसान एक्चुअली हो जाता है, मान लीजिए हमने चोरी का डर है, आग लगने का डर है और आग लग गई हमारे यहाँ गोडाउन में और उससे हमें नुकसान हो गया, हमने इंश्योरेंस कराया हुआ था, इंश्योरेंस कराया तो हमने डॉक्यूमेंटेशन करा के इंश्योरेंस क्लेम ले लिया, तो व्हाट हैपेंस, वी आर रिसीविंग द इंश्योरेंस क्लेम ऑल्सो. तो एबनॉर्मल लॉस के केस में क्या होता है कि वी मे हैव द इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द होल प्रोसीजर वी मे गेट सम और द होल अमाउंट एज द इंश्योरेंस क्लेम. नॉर्मल लॉस क्योंकि एक्सपेक्टेड लॉस होता है तो उसका इंश्योरेंस नहीं होता है और वो हमारा नुकसान हो जाता है. इन केस नॉर्मल लॉस में हम सिर्फ क्वांटिटी ख़त्म करके दिखाएंगे, कम करके दिखाएंगे, क्योंकि यूनिट्स तो ख़त्म हो गई, डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई. मान लीजिए इवेपोरेशन है, थिनर है, जैसे आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल. इफ़ आई टॉक ऑफ द थिनर, अगर आपने बॉटल खोली है यूज़ करने के लिए, कुछ आप यूज़ कर रहे हो, कुछ वो इवेपोरेट हो जाएगा. तो वो जो इवेपोरेशन हो रही है आप उसको रोक नहीं सकते एक नॉर्मल पेस से. अगर आपने बॉटल खुली छोड़ दी तो वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, बट अदरवाइज अगर आपने उसको तमीज़ से यूज़ किया है, ढंग से यूज़ किया है, तो भी कुछ ना कुछ वो इवेपोरेट होगा ही होगा, तो वो नॉर्मल लॉस माना जाता है. एंड इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस कैटेगरी यू डोंट गेट इट इंश्योर. तो जो उसकी वैल्यू होती है, नुकसान तो हो ही रहा है, तो व्हाट हैपेंस इज द कॉस्ट और द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू अदर गुड यूनिट्स. हमने क्या किया है, हम उसकी क्वांटिटी दिखा के क्वांटिटी कम कर देते हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू को हम कम नहीं करते हैं, हम उसकी वैल्यू को बाकी जो हमारी सही यूनिट्स हैं उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं. इन केस यू हैव नॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस क्योंकि हमारा इंश्योरेंस वाला होता है, इंश्योरेंस हो सकता है हमने कराया है, तो एबनॉर्मल लॉस के केस में एवरी टाइम वी हैव टू शो द क्वांटिटी एज वेल एज द अमाउंट. Now if I on 13th January if I assume that there is a normal loss of let's say 20 units, आपने normal loss देखा 20 units का, तो what actually you are supposed to do is जो issue वाला कॉलम में quantity वाला सब कॉलम है उसमें हम 20 यूनिट्स दिखाएंगे, डिडक्ट करके हम वो कम कर देंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस में कमी हो जाती है, और उसमें साथ में ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा नॉर्मल लॉस, ताकि आपको ये बाद में जब कोई भी शीट ये देखते हैं तो उनसे पता चल जाता है कि वो कंजम्पशन है, नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है. तो इन केस यू हैव नॉर्मल लॉस, जस्ट राइट द क्वांटिटी इन क्वांटिटी कॉलम ऑफ इशू and in bracket you write the normal loss and you don't write any rate and amount, it has to be nil. I'm just writing it nil, you can put the dash also, it is not supposed to be valued. अब इसकी हम क्या करेंगे, क्वांटिटी में जाएंगे. क्वांटिटी में यू हैव टू चेक द मेथड यू आर यूजिंग टू प्रिपेयर द शीट. अभी हम लीफो से बना रहे हैं, लीफो से मतलब था कि जो हमारा लास्ट बैच है उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं,
तो नॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट भी हम उसी पे ही दिखाएंगे। तो व्हाट एक्चुअली वी आर सपोज टू डू इज, अब पहले 13 तारीख से पहले का जो हमारे पास स्टॉक है वो कौन सा है? We have in our stock 800 units at a rate of 50, 300 units at a rate of 9। लीफो के हिसाब से 300 यूनिट्स पहले कंज्यूम होंगे जिसमें से ही नॉर्मल लॉस जाएगा। तो इसका मतलब ये 800 यूनिट्स तो मेरे पास इंटैक्ट है ही 40,000 की। जो नॉर्मल लॉस है 20 यूनिट, वो किस में से ख़त्म करूँगी मैं? 300 यूनिट में से। तो मेरे पास एक्चुअली बची 280 यूनिट्स। नाउ इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द अमाउंट इज नॉट टू बी शोन। तो इसका मतलब ये जो पहले वैल्यू थी 2700, ये अभी भी 2700 ही रहेगी। ये चीज़ आप प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा। द वैल्यू in case you have normal loss, the value of the stock will remain same, the units in the quantity will decrease, and the net impact will be that there will be the increase in cost per unit। पहले मेरे पास 300 यूनिट थे जिसमें से मैंने 20 रुपये का नॉर्मल लॉस ख़त्म किया है। वो 300 यूनिट्स मेरे पास 9 रुपये के हिसाब से थे, 2700 रुपये की टोटल वैल्यू थी। अब मैंने उसमें से 20 यूनिट ख़त्म कर दिए, 280 का मेरे पास स्टॉक है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी कीमत 2700 है। तो एक्चुअली होगा क्या कि जो पर यूनिट कॉस्ट होगी, पहले पर यूनिट कॉस्ट कैसे थी? 9 रुपीज़ थी। नाउ इट विल इंक्रीज, नाउ इट विल बी 2700 डिवाइडेड बाय 280। नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 9 रुपीज़ टू 9.64 पैसा। मैं अगर इसको राउंड ऑफ कर दूँ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 9 रुपीज़ 64 पैसा। इसका मतलब मेरी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई सिर्फ एक नॉर्मल लॉस के चक्कर में, क्योंकि नॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट होती है हम बाकी गुड यूनिट्स पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आई होप दिस नॉर्मल लॉस ट्रांजेक्शन इज क्लियर टू यू, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट राइट द मैसेज। क्या गाड़ी में बैठ के कार जाएगा, उसकी गाड़ी को किसी ना Okay, now let's continue then. Now let's see on 17th of January, I hope normal loss situation is clear to you. 17th January you made a purchases of 500 units at a rate of 10. The closing balance will be, you have 800 units at a rate of 50, 280 units at a rate of 9.64, and the total value is 2700, and you have purchased 500 units at a rate of 10,000 का स्टॉक आपने और यहाँ परचेज किया है। Okay, now let's say on 20th January you have the abnormal loss 100 units। 100 आपने abnormal loss फेस किया है। अब जब abnormal loss आप फेस करेंगे तो what actually happens is, again as per the method you have to check कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। LIFO है तो LIFO में लास्ट वाले यूनिट से आपका चला जाएगा, लास्ट वाले यूनिट से। ओके, आई विल जस्ट चेंज इट द यूनिट्स, इफ आई मेक इट 600 यूनिट्स। 600 यूनिट्स का लॉस है। ये जो 600 यूनिट्स का लॉस है, दिस हैज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट ओवर। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये वाला आपके पास क्लोजिंग बैलेंस था 800 यूनिट 50 रुपये पे, 280 यूनिट्स 9.64 पे, 500 units at a rate of 10. Now these 600 units, how will these units will be valued? ये आप नॉर्मल जैसे हम कंजम्पशन दिखाते थे ऐसे ही दिखाएंगे, इसकी वैल्यूएशन भी करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस होता है। तो सबसे लास्ट वाला जो लॉट था 500 यूनिट्स का, ये आपकी ख़त्म हो गई। उसके बाद रिमेनिंग 100 यूनिट्स विल बी कंज्यूम फ्रॉम नेक्स्ट बैच लॉट। तो 9640 इट विल बी देयर।
then you'll be having the closing balance of 800 units at a rate of 40, rate of 50 you have 40,000 का आपके पास स्टॉक था, and remaining 180 you have at a rate of now when you just have the round off figures, what you can do is just instead of multiplying it, आप इसके से माइनस करके दिखा दीजिए या उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा. इट शुड बी टोटल 2700. तो मेक श्योर कि इफ आई मल्टीप्लाई 180 into 9.64, I may not get the sum total of 2700. You have to get it square off. This is how you just record the normal loss, abnormal loss values accordingly. I hope this is clear. इसी तरह you may have the situation where you have the surplus ये abnormal gain हम इसको कह सकते हैं. इसका फ़र्क क्या होता है कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो somehow you missed some entry and while doing the physical counting you found that additional units are there which is not recorded in the register. ऐसा हो सकता है कि आपने एंट्री लिखने में कहीं कुछ गलती कर दी. जैसे आपने 100 यूनिट्स मंगाए, आपने गलती से 100 लिखने की बजाय सिर्फ 10 लिख दिया, तो इसका मतलब देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 90 यूनिट्स. तो जब मैं फिजिकल काउंटिंग करूँगी यू मे गेट दिस डिफरेंस एक्चुअली में कि आपके पास है और रजिस्टर में एंट्री नहीं है. तो दिस सिचुएशन विल बी the situation where we talk of the case of abnormal gain or surplus. And in case you have abnormal gain or surplus, what you have to do is, like let's say if I just say कि it is the surplus of 20 units, तो ये भी आपका जो स्टॉक है उसके हिसाब से ही आप उसमें ऐड करके दिखा सकते हैं. अगर आपको उसमें पर्टिकुलर कोई रेट दिया हुआ है तो आप उसके रेट पे ही उसको दिखाएंगे और उसके हिसाब से एंट्री कर देंगे. अदरवाइज जो आप मेथड यूज़ कर रहे थे उसके हिसाब से यू विल जस्ट add that entry. So in case I am just saying that there is a surplus of 20 units, then as per LIFO method it has to be valued at a rate of 9.64. Now if I just make it at 9.64, the total balancing figure I'll be having will be 800 at a rate of 50 and 200 units at a rate of 9.6. You just go for the calculations. Now if I ask no other entry is there in January, then the closing value, closing stock on 31st of January, वो आपका क्या आएगा? Closing stock, all the entries for a particular time period is done, then the closing stock के लिए जब आप आंसर लिखेंगे that will be you have 800 units at a rate of 50 and 200 units at a rate of 9.64, and in total you have the stock 41,928 rupees. This is how you go for the calculation of closing stock. अभी इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए कि जो आपने सेल्स की हैं, सेल्स के लिए आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ होगा साथ में और उसके बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो लेट्स से इफ़ आई जस्ट जो हम लोगों ने कंजम्पशंस की थी, कंजम्पशंस के बेसिस पर अगर आपको हम लोगों ने किया था 500 700, यहाँ पे 700 यूनिट्स हमने सेल्स की थी. तो इफ़ आई जस्ट से सेल्स 700 at a rate of, I'm just doing it here, 700 at a rate of let's say 70 रुपीज़ आपने बेचा. फिर आपने 700 यूनिट्स को 20 रुपये पे बेचा एंड देन यू डोंट हैव एनी सेल्स. नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की सिचुएशन है बस. तो आप इसमें क्या करेंगे, जो भी सेल्स की यूनिट्स और रेट दिया हुआ होगा, द सेलिंग प्राइस विल बी देयर इन द क्वेश्चन, यू जस्ट कैलकुलेट करके इनटू यूनिट्स अगर आप कर देंगे तो एक आपने 49,000 रुपीज़ की सेल्स करी और एक आपने
टोटल जो आपने सेल्स की हैं वो टोटल सेल्स हमने की हैं 63,000 रुपीज़ की. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट to calculate it, then it is sales minus cost of goods sold. This is the formula for the gross profit where we have to consider sales minus cost of goods sold. Sales हमने calculate कर ली according to the information which will be there in the question. इसमें से हम COGS कैलकुलेट करना. COGS आप सिंपल से तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. जो हम लोगों ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया है, अब ये जो शीट बनाई है, शीट में इशू वाले कॉलम में इंस्टेड ऑफ बस एक्सेप्ट ऑल दी एंट्रीज ऑफ नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस वो हमें कंसिडर नहीं करनी. उसके अलावा जो है वो हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. तो हम लोगों के लिए जो कॉस्ट कैलकुलेट करके आएगी वो कैलकुलेट कैसे करके आएंगे. एक 700 यूनिट्स हमने यहाँ पे इशू किए थे, 500 एट द रेट ऑफ 8, 200 एट द रेट ऑफ 50 और 11 जनवरी को 700 एट द रेट ऑफ 9. उसके बाद इशू वाले कॉलम में I have only the entries of normal and abnormal loss which is not supposed to be taken care of. तो यहाँ पे जो इनका टोटल है वैल्यू का, अमाउंट का, वो हमारा COGS होता है. तो अमाउंट का कॉलम इशू वाले सब कॉलम के जो अमाउंट का सब टोटल होता है, दैट इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड excluding the amount of abnormal loss. Abnormal loss is not supposed to be taken care of. तो अब COGS और सेल्स अगर मैं देखूँ तो सेल्स मेरा है 63,000 रुपीज़ माइनस इट विल बी सम टोटल ऑफ दिस 20,300 is COGS and gross profit will be 63,000 minus 20,300, 42,700. This is your gross profit in this particular situation. This is the concept of LIFO. Now the same question if you do with the your weighted average, what you are supposed to do is just copy this. Okay, now if you go with another method, weighted average method, तो अब आपको क्या करना है weighted average में I'll just mention date again. January 3rd, 7th. We have 8. Now the same question is there, maybe some date change may be there, but the question is now on the basis of weighted average. I hope LIFO is clear. Okay, now on 1st January, the question is same. You have the opening balance of 1,000 units at a rate of 50 and the total amount is 50,000 rupees. On 3rd January, you have purchased 500 units at a rate of 4,000. A weighted average के केस में हमें क्या करना है? We are not supposed to write the closing balances separately. अब मुझे टोटल लिखना है, क्वांटिटी का भी और अमाउंट का भी, और उसके हिसाब से हम रेट कैलकुलेट करेंगे. अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम क्वांटिटी और रेट लिखते थे और फिर अमाउंट कैलकुलेट करके लिख रहे थे. अब हम क्वांटिटी और अमाउंट लिखेंगे पहले और फिर हमारा रेट आ जाएगा पर यूनिट. तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
मान लीजिए पहली आपने आई जस्ट मेक द चेंजेस हेयर, you have 1000 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 10 रुपीज़, दी ओपनिंग बैलेंस 10,000 का था। 3 जनवरी को यू मेड अ परचेज ऑफ 500 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 8, 4000 का स्टॉक हमने और परचेज किया। तो इन द एट द एंड ऑफ 3 जनवरी मेरे पास टोटल जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 1000 यूनिट्स मेरे पास पहले थी और अब 500 मैंने और परचेज़ कर ली। जब मैंने 1000 थी 500 और परचेज़ कर ली, तो टोटल जो मेरे पास स्टॉक है वो मेरे पास है 1500 यूनिट्स का। तो नाउ इन केस ऑफ वेटेड एवरेज आई हैव टू राइट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉन्ग विद द टोटल वैल्यू। पहले 10,000 का स्टॉक था, अब 4 का है, तो टोटल मेरे पास हो गया 14,000 का स्टॉक। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दिस। अब अलग अलग नहीं लिखना है हमें। अब यहाँ से हम रेट कैलकुलेट करेंगे। रेट जब कैलकुलेट करेंगे तो रेट नाउ विल बी, आई हैव 14,000 वर्थ गुड्स विद मी एंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इज 1500। तो पर यूनिट जो आएगी, पर यूनिट कैसे आएगी, टोटल अमाउंट 14,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 1500, 9.33 मैंने वेटेड एवरेज कर दिया। तो दिस इज हाउ यू गो फॉर दी preparation of sheet when you have to prepare it on the basis of weighted average। तो मैं इसको up to 2 decimal places अगर कर दूँ तो it will be 9.3। then on 7th January you have consumed 700 units। अब 700 यूनिट्स जो हमने कंज्यूम किए हैं, अब क्योंकि रेट मेरे पास सेम ही चल रहा है तो मैंने क्या किया, 700 यूनिट्स विल बी कंज्यूम्ड एट अ रेट ऑफ 9.33, क्योंकि स्टॉक ही मेरा वैसे ही है। अब स्टॉक, एक सेकेंड, 700 एट अ रेट ऑफ 9, दिस विल बी, वैल्यू विल बी 6531। तो या तो 6530 आप कर सकते हैं या 6531 अगर छोड़ेंगे तो आपका अमाउंट में वेरिएशन आएगा। अब मेरे पास जो वैल्यू, जो स्टॉक बचा है वो मेरे पास कितना बचा, 800 यूनिट्स का। और अमाउंट मैं कैलकुलेट करूँगी। अभी रेट से आप करना चाहो आप रेट से कर सकते हो इशू वाले कॉलम में, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू जस्ट माइनस 14,000 माइनस 6531, 7469 का आपके पास स्टॉक बचा हुआ है। एंड द रेट यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रेट विल बी सेम, मैंने सिर्फ करके दिखाया है 9.33। देन ऑन 8th January यू मेड अ परचेज ऑफ 1000 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 9। तो टोटल जो स्टॉक मेरे पास है, पहले 800 था, अब 1000 और परचेज कर लिया तो मेरे पास आ गया 1800 यूनिट्स का। पहले 7469 का स्टॉक था वर्थ, अब 9000 का और परचेज कर लिया तो मेरे पास टोटल है 16,469। अब मैंने इसका रेट कैलकुलेट करना है तो इट विल बी टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दैट मीन्स 16,469 डिवाइडेड बाय 1800, 9.15 अप्रॉक्सीमेटली। अगेन ऑन 11th January हमने इशू किए 700 units, the rate will be 9.15 and the total value will be multiplication of these two figures 1,405 rupees। मेरे पास 1100 यूनिट्स बचे हैं एंड रेट विल बी सेम 9.15। जब तक परचेजेस नहीं करूँगी अगले तब तक रेट मेरा सेम ही रहेगा and the total value will be 16,469 minus 6,405। 13th January we had a normal loss of 20 units। तो 20 units में as I told you that no rate and amount should be there, so that means only 20 units मुझे minus करने थे। तो 1100 में से what I'll do, 20 units minus कर दूँगी तो I'll be having 1080 units and the total value will be same। यहाँ वैल्यू सेम रहेगी। मेक श्योर कि जब भी नॉर्मल लॉस की एंट्री हो रही है तो वैल्यू जो अमाउंट है वो सेम रहेगा, रेट आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीज कर जाएगा पर यूनिट का। तो नाउ द रेट विल बी 10,064 डिवाइडेड बाय 1080 रिमेनिंग यूनिट्स जो हैं, तो इट इज़ 9.31852, तो अप्रॉक्सीमेटली इट्स 9.32। I hope this is clear। 17th January you made a purchase of 500 units at a rate of 10। तो अब मेरे पास टोटल 1580 यूनिट्स हो गए हैं जिसमें मेरे पास
फिगर है 15,064 की वैल्यू की। तो रेट will be 15,064 divided by 1580, 9.53418. It will be 9.53 approximately. Have 600 units normal abnormal loss है. Abnormal loss is to be valued. Now this 600 units will be valued at 9.53 and the value will be 600 into 9.53. The remaining units will be 1580 minus 600. 980 मेरे पास बची हैं. 9.53 का रेट है and the closing stock I have with me is I have 980 units at a rate of 9.53 and the total value is 9,346. This is on the basis of weighted average. Now if you make just comparison, this was the sheet on the basis of your LIFO and you had the closing balance of, okay, we had the surplus also. Surplus से पहले 20th January को we had the closing balance of 800 units at a rate of 50 and 180 at a rate of 9.64. ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने रेट में चेंज किया था. तो you have 980 units on 20th January. तो यहाँ पर भी देखिए आपका 980 units की units आई हैं. Every time you are preparing the stock ledger, the number of units क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो बचेंगी, चाहे कोई भी मेथड हो, दे विल बी सेम, बट डिपेंडिंग ऑन दी मेथड वी आर यूजिंग, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो उसके बेसिस पर जो वैल्यूएशन होगी वो आपकी अलग अलग करके आएगी, मगर आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी सेम एवरी टाइम. आई होप this is clear, or in case you have some doubt, you can ask me. Otherwise we can continue with our next topic. I hope LIFO, FIFO और weighted average आप लोगों को clear है. Then you have another method to be done, is the replacement method. Actually replacement method में क्या होता है? Replacement method is basically the replacement price method. It is the price at which the material can be replaced, like the market price on that date of issue. तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने लीफो, फीफो या वेटेड एवरेज में किया है, तो व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग इज वी आर showing or we are recording the issue of stock at the rate according to the method. तो LIFO है तो लास्ट वाला जो हमारा परचेजेस था वो जिस भी रेट पे हमने परचेज किया था हमने उस पर ही कंज्यूम करा. ऐसे ही FIFO अगर है तो हमने फर्स्ट वाले लॉट का परचेज प्राइस ही दिखाया. वेटेड एवरेज है तो हमने वेटेड एवरेज कर दिया. रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में जब हम इशू करते हैं तो बेसिकली हम कौन सा प्राइस ले रहे हैं? We are replacing the purchase price with the current market price. तो हम बेसिकली LIFO, FIFO, weighted average की बजाय हम उसको कंजम्पशन उस रेट पे दिखा रहे हैं जिस रेट पे अगर हम आज परचेज करते तो वो कितना होता. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरा जो लॉट है परचेज किया हुआ वो 10 रुपये का परचेज किया हुआ था, मैं अगर उसको इशू करती आज LIFO, FIFO या weighted average से तो वो 10 रुपये का रेट आता. मार्केट में वो एक्चुअली रेट है 15 रुपये. अब मैं अगर उसकी कंजम्पशन 10 रुपये के हिसाब से दिखाऊं, विच एवर द मेथड इज, कोई से भी मेथड से वो 10 रुपये अगर आता है और मार्केट में करंट प्राइस है उसका 15 रुपये, बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं अगर आज परचेज करती तो मेरे लिए वो महंगा पड़ता 5 रुपये. मैं 15 रुपये में परचेज करती तो मेरे एक्सपेंसेस 15 रुपये के हिसाब से ही आते. लेकिन मैंने उसको पहले कभी ख़रीदा जो कि डिफ्लेशन का टाइम था या नॉर्मल टाइम था, अभी इन्फ्लेशनरी टाइम चल रहा है तो वो महंगा मिल रहा है, तो मैं उसको 10 रुपये के हिसाब से अगर चार्ज करती हूँ LIFO, FIFO या वेटेड एवरेज से, तो मैंने उसको बेसिकली दिखाया हुआ है पुराने प्राइस पे जब मैंने सस्ता परचेज किया था, तो एक्सपेंसेस उसके हिसाब से दिखाए हुए. सिर्फ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को पॉप अप करने के लिए, उसका इम्पैक्ट दिखाने के लिए समटाइम्स, और डिफ्लेशन में भी ऐसा हो सकता है, तो
the current market price is being replaced with the cost at which we have purchased the material. So what actually we are doing is we are replacing the price and we are changing the cost according to the current price. तो हम cost price को current market price से change कर देते हैं. This kind of method is most suitable for the organizations which basically purchase the quantity in bulk. मान लीजिए मैंने बल्क पे परचेज किया तो जाहिर बात है बल्क में परचेजेस करने से हमें एडवांटेज होता है कि हमें डिस्काउंट मिल जाता है, हमें सस्ते में मटेरियल मिल जाता है और उसका जो बेनिफिट होता है वी डोंट वांट टू पास दैट बेनिफिट टू द कस्टमर. रीज़न बीइंग कि अगर मान लीजिए मैंने बल्क में परचेज किया, बल्क में परचेज करने की वजह से मुझे वो मटेरियल सस्ता मिला और 10 रुपये में मिल गया. मैं अगर आज बल्क में परचेजेस नहीं करती तो आज वो मटेरियल मुझे 13 रुपये का मिलता. 3 रुपये मैंने सस्ता खरीदा सिर्फ बल्क क्वांटिटी की वजह से. तो जो 3 रुपये का डिफरेंस है मैं अगर उसको 10 रुपये पे चार्ज करके दिखाऊं तो बेसिकली मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा और मैं अगर उसको 13 की परचेजेस ही दिखाऊं तो जाहिर बात है कि मेरा प्रॉफिट कंपैरेटिवली 3 रुपये से कम दिखेगा. तो मैं उसका एडवांटेज खुद उठाने के लिए बजाय उसको कस्टमर्स को ट्रांसफ़र करूं, आई वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट बल्क परचेजेस, क्योंकि बल्क परचेजेस भी तो मैंने ही किए. तो इसलिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट replacing the cost price with the current market price. And it's very easy to operate. It's easy to implement this method. Every time whenever you are preparing the sheet and you are using the replacement method, what actually you are supposed to do is कि जो हमारे issue वाले column में entry होगी तो units तो आपको दिख रही हैं, जो price होगा, rate होगा, रेट विल नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ लीफो फीफो या वेटेड एवरेज. रेट वो होगा जो करंट मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है. दैट विल बी द करंट मार्केट प्राइस एट विच इट हैज़ टू बी वैल्यू. रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड के एडवांटेजेस हैं मगर उसके लिमिटेशंस भी हैं. वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन इज दैट द रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल वर्क ऑफ फाइंडिंग आउट द रिप्लेसमेंट प्राइस एट द टाइम ऑफ ईच इशू. अब आपको हर बार ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब भी मैं कोई यूनिट्स को कंज्यूम कर रही हूँ, इशू कर रही हूँ, तो मुझे अपडेट करके रखना पड़ेगा कि भी इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट करनी है. रिप्लेसमेंट प्राइस के लिए मुझे आई नीड्स टू नो द एक्चुअल करंट मार्केट प्राइस. तो आई नीड्स टू बी अवेयर ऑफ द करंट मार्केट प्राइस विच इज़ देयर ऑफ द पर्टिकुलर item. And sometimes what may be the problem which is faced by the companies is that the replacement price or the current market price is not easily available for them. तो उसके बेसिस पर फिर वो क्या करते हैं कि वो उसको एस्टिमेट कर देते हैं कि अंदाज़ा ये वाला प्राइस होगा, एक्चुअल नहीं मिलता उनको तो वो आपकी रिलायबिलिटी कम कर देता है. And the stock valuation is not the basically current it should not be at the current price. It should actually be on the price at which it has been purchased. तो ये एक लिमिटेशन उसकी मानी जाती है कि हमने इसमें मैनिपुलेशन कर दी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर हमें ज़रूरत लग रही है तो अपने बेनिफिट के लिए, जबकि एक्चुअली में जितने पे हमने परचेज किया है हमें उस पर ही उसको शो करना चाहिए. दिस इज़ हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट मेथड. The concept, the preparation of the stock ledger will be same. Instead of one thing that whenever you are issuing or consuming the units, it has to be valued at the current market price, which will be there in the your question. वो आपको दिया हुआ होगा. Now this inventory valuation is over. I hope the concept of material cost is clear to you. In our next class, we will be discussing about the labor cost, जिसमें हमें idle time और causes of labor, turnover, time keeping, payroll department ये सब इसकी calculations करनी है. In case you have any doubt in material cost, you can ask me. I have already shared this PDF with you all in the chat box or in the file section. You can get this file from there.
Okay. Now the next chapter we are supposed to do is the labor cost. Labor cost is basically the one of the important variable in the total cost of production. And in labor cost again we may have the direct labor, and we may have the indirect labor who's working in different departments, except of the department of the production. उसके अलावा में दीपांशु and some other students, they have asked me कि एग्ज़ाम्स कब से होंगे. I'm not sure when will your exams be starting. Just keep on updating yourself from the SOL websites along with the DU website. You'll be getting the date sheet on websites. Okay, now when we talk of the labor cost is a cost which is which has to be incurred by the company in the for production process as well as for unproductive processes in the organization, and it's the very important part of the cost of production. When we are talking of different departments or different divisions there in the organization, we have different kind of labor at every department and or division, where they are performing different kind of functions, and you have to maintain their records so that the payment can be done to them in a proper way, along with the control over the cost. अब ऐसा अगर आप लिख कहीं रिकॉर्ड नहीं करके रखेंगे, then it would not be easy for the concerned department or the finance department or accounts department, you can say, to make the payments to the workers. Now when we talk of the, let's say, different kind of departments, you may have different departments. One of the department may be doing this kind of role when we are talking of the personnel department, and they basically are taking care of different kind of functions like recruitment, selection, training, promotion, transfer, maintenance of records of the employees who are working in the organization. तो when जैसे हम HR department की बात करते हैं, तो HR department is basically doing all this thing, that whenever you are hiring employees, you are maintaining the records of each and every employee in terms of the starting from the recruitment process till the maintenance of their service, leave records, transfer, promotion, training and development process. तो वो सारा का सारा उनको HR डिपार्टमेंट है, उनकी पूरी हर एम्प्लॉई की एक फाइल मेंटेन करके रखो, and they maintain the record of all the employees. Then you may have another department who's preparing different kind of plans or schedules for the production process or job analysis, and they conduct time motion studies, they maintain control over the working conditions of the employees who are working in the organization. You may have the person who's or the department who's spending the time in recording the time which has been spent by the worker in the factory or at particular job in the organization. So basically what we are doing is कि in case we have the workers, we have employees who are working in the organization, a particular department is there, or the particular person is there who is concerned or whose duty is to record the time which has been spent by each and every worker in the organization. For example, जैसे हम बायोमेट्रिक की बात करते हैं, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो when we have the biometric attendance system, so you may find a situation where you have to punch in at time and punch out time. So automatically your in and out time is recorded in the record books कि आपका टोटल टाइम आपने कंपनी में कितना दिया है, that automatically gets calculated on the basis of which you'll be getting the pay. या कहीं अगर पे पर आर के हिसाब से नहीं भी है, बेसिकली लाइक कई बार कंपनीज में होता है कि यू हैव टू स्पेंड 16 आवर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन per week or on daily basis. It can be any time, 8 days on daily basis. तो वो पंच इन और पंच आउट टाइम के हिसाब से वो कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि हाउ मच time you have spent in the organization, on the basis of which your salary or your pay will be finalized. Apart from this,
You may have the payroll department who will be preparing the payroll, and they'll be distributing or disbursing the wages and maintenance of inventory records. तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि किसको कितनी सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पेरोल कैलकुलेट करते हैं. देन यू मे हैव the cost accounting department, where you may have the person who is accumulating and classifying the cost data, which includes the labor cost, and they submit their special reports on the basis of which the management is taking the decisions to control the cost. Now here I'm talking of the labor cost. So basically cost accounting department, you may have this department in your organization, and they'll be preparing the special reports for the labor cost, and they'll be submitting it to the management, so that management is enabled on the basis of the report, they'll be able to control the labor cost if possible. कहीं पे वो देख सकते हैं कि कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, and if possible then they will try to control this labor cost, because जब आप पैसे दे रहे हो तो it has to be justified कि how much money is given to the particular person, is he worth of it, उससे हमें इतना एडवांटेज है या नहीं है, और खाली तो नहीं बैठा है, खाली बैठा है तो उसकी सैलरी कट दी, उसने छुट्टियां ज़्यादा ली हैं तो आपने छुट्टियों के पैसे काटने शुरू कर दिए, ओवर टाइम किया तो उसमें ओवर टाइम क्यों आप उसको पैसे दे रहे हो. दीज ऑल थिंग्स आर टू बी taken care of in the labor cost, and the management has the focus to certain extent to, and they basically they have the focus to control the wastage in, if any, in the labor cost. This is the basic theoretical portion. Next time in our next lecture we'll do the practical questions, practical aspect, where we will be discussing the idle time and the calculation of the labor turnover. I hope the lecture is clear. PDF show नहीं हो रहा है. Just wait. I already shared the PDF. I again shared the PDF. Okay. We have done this. Okay, now the last topic in material cost was the simple average price method, जो हम लोगों ने weighted average किया था. weighted average, I hope the concept is clear. सिंपल एवरेज में आपको क्या करना है, सिंपल एवरेज प्राइस इज बेसिकली कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द परचेजेस. तो व्हाट एक्चुअली द डिफरेंस इन द सिंपल एवरेज एंड द वेटेड एवरेजेस, कि सिंपल जो वेटेड एवरेज था, वेटेड एवरेज में जो हमारे पास पिछला बैलेंस है और जो अब हमने परचेजेस किए हैं, हम सिर्फ उन्हीं को ही कंसिडर कर रहे हैं. जैसे जैसे हम परचेजेस करते जा रहे हैं हमारा उसके अकॉर्डिंगली रेट चेंज होता जा रहा है. Simple average में what they do is कि they record all the transactions, and in case you have different quantities purchased in different lots, they consider all those together and take the average of it. For example, आपने 3 लॉट में स्टॉक को परचेज किया अलग अलग टाइम पे. You made a purchase of 500 units at a rate of 40, 200 at a rate of 50, 700 at a rate of 60. अब हम पहले वेटेड एवरेज में क्या कर रहे थे, मान लीजिए पहले हमने 500 यूनिट्स परचेज के 40 पे, ये तो यही सेम रेट रहेगा क्योंकि कोई और बैलेंस है नहीं. मान लीजिए 200 यूनिट परचेज किए 50 रुपये पे. मैं अगर वेटेड एवरेज से कैलकुलेट करूँगी तो कैसे कैलकुलेट कर रही थी, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एट द टाइम ऑफ परचेजेस ऑफ 200 यूनिट्स विल बी 700. 500 पहले थे, 200 मैंने अब परचेज कर लिए, तो टोटल विल बी 700 यूनिट्स. और जो उसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, पहले 20,000 का स्टॉक था मेरे पास, 10,000 का मैंने अब और परचेज कर लिया है, तो टोटल इज 30,000. तो 30,000 डिवाइडेड बाय 700, दैट विल गिव मी द वेटेड एवरेज प्राइस. फिर तीसरी परचेजेस जब कर रही हूँ 700, तो अब मेरे पास एक और रेट आ जाएगा, एंड दैट विल बी 700 प्लस 7, 1400 यूनिट्स मेरे पास हैं, और टोटल वैल्यू का टोटल करके 1400 से डिवाइड कर दूँगी.
नाउ दिस इज अज्यूम्ड कि कोई इसमें इशू नहीं है, अगर इशू होगा तो उसके हिसाब से आप शीट बनाते चले जाओगे। सिंपल एवरेज में आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आप करोगे तो सिंपल एवरेज के केस में जब भी आपने जितना भी मटेरियल परचेज किया है सबका इकट्ठा पहले एक बार एवरेज करोगे और उसके हिसाब से आप इशू करके दिखा दोगे। तो ये 3 लॉट अगर मैंने परचेज किया अलग अलग टाइम पे, इन तीनों के जो प्राइसेस थे 40, 50 और 60, इसका एवरेज निकालना है। तो वेटेड एवरेज में हम वेट्स असाइन करते हैं कि ये 40, 50, 60 में कितनी यूनिट्स हैं, हम यूनिट्स को भी कंसिडर करते हैं इन केस वी आर कैलकुलेटिंग द वेटेड एवरेज रेट। सिंपल एवरेज के केस में हम सिर्फ रेट को देख रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स विच हैव बीन परचेज। तो 40, 50, 60 मेरे 3 प्राइसेस थे, इसका एवरेज निकाला तो 40, 50, 60 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा जो एवरेज निकल कर आया वो 50 रुपये निकल कर आया, जिसके हिसाब से मैं शीट बनाऊंगी और एवरी टाइम आई विल बी इशूइंग एट अ रेट ऑफ 50। इस तरह से आपको इसमें कैलकुलेशंस करनी है। आई होप ये क्लियर है। इन केस यू विल बी हैविंग सम स्टडी मटेरियल विद यू विल बी हैविंग योर बुक्स विद यू फॉर रेफरेंस, just try to attempt the questions, only then the concepts will be more clear to you, and in case you have any doubt then you can ask me. चैट बॉक्स में PDF शो नहीं हो रही है। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप पे आई ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप, बट एवरी मतलब सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे वर जस्ट मिसबिहेविंग इन दैट, और फालतू की उसमें चैट थी, तो आई एग्जिट द ग्रुप। Abhishek, I am already there in the group. If I am already in the group, you can see me. Just you'll be having my number. Just to give me a separate message. I'll share the PDF with you, and then you can share it in all other groups. I don't want to be the part of the group because आप लोग बहुत ज़्यादा फालतू की चैटिंग और मिसबिहेव का आप लोगों का जो सिस्टम चलता है of some of the students, I don't want to be the part of such kind of group. You can just message me separately. I'll share the files and you can share it with other. And in case you have any doubt, you can ask me in our next class. Till then, take care. Bye bye.